Yes, ma'am. जी मैम। Yes, ma'am. No problem. Signals and systems. It is the first course in your curriculum that is related to your degree telecom engineering. तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है. बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेस्ड करते हैं इस पे. जब आप आगे पढ़ेंगे लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बाकी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो लेने के लिए. ठीक है. These are textbooks. Signal and System by Simon Hagen. Then Signals and System by Oppenheim. Fourth edition. This one is fourth edition and second edition. ठीक है. I have a soft copy. मैं आपके साथ उसको शेयर कर सकती हूँ. ठीक है. Grading criteria इसमें मिड टर्म और फाइनल को निकाल दें कि जो असाइनमेंट्स हैं वो 5% होंगी और जो क्विजेस हैं दैट विल बी 15%. ठीक है. ये आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन मोस्टली जो परसेंटेज है, ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आपके पास क्विजेस की है. सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम कंटेंट्स क्या कवर करेंगे. कंटेंट ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम is signals and systems introduction. What is signal, different type of signals, what are systems, different type of systems, and relation of signals and systems, and mathematical background, signal classification like energy signal, power signal, even signal, periodic signal, aperiodic signal. Then we will cover basic operations with signals or basic transformation of signals. Then systems examples and classifications, LTI systems, linear time invariant systems. ठीक है. और जब हम कवर कर चुके होंगे different types of systems, so then LTI system समझने में हमें आसानी होगी. Then convolution, LTI systems and the impulse response. What is convolution we will see in the next lecture or whenever we will start chapter 2. Then linear system, zero input, zero state response. Then trigonometric Fourier series. Mostly you will cover Fourier analysis tools. Almost 60% contents includes Fourier analysis tools, which is a way to convert a time domain signal into frequency domain signals. Frequency domain representation. So there are two domains of signals. One is time domain and second one is frequency domain. We will see in the next sector. Then different types of Fourier series, exponential Fourier series, fundamental frequency and properties, Fourier beyond the Fourier series, Fourier transform. These are all Fourier analysis tools, or which is a way to convert a time domain signal into a frequency domain signal. Right? Then we will see why we convert a signal from time domain to frequency domain, why we need these tools. And when these transforms exist, we will see different conditions for them. Then inverse transform, useful Fourier transform, properties of Fourier transform, and then we will see what are the
examples, real-time examples of these systems of and the Fourier transform. What are the real-time examples of Fourier transform in communication systems? Then properties of the Fourier transform, LTI systems and Fourier transform. What is relation between LTI systems and Fourier transform? If Fourier transform fails, okay? If Fourier transform does not converge, then we will move towards Z transform. Then we will study Z transform, inverse Z transform, different properties of Z transform, region of convergence, and so on, right? So these are the contents of your subject signals and systems course. These are CLOs, course learning outcomes. First one is gain fundamental understanding of basic of signals and systems and their different types, which can be used in a wide variety of disciplines in engineering, right? फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम जब कवर करेंगे तो वी विल सॉरी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. जी मैम. Okay, okay. Then there is a CLO 3, or which is analyze continuous and discrete time signals and systems. Ma'am, slide भी show हो रही. Okay, okay, sure. I think अब आप देख सकते हैं. यस मैम विजिबल है. अजान हो रही है, मुझे बस 1 मिनट दे दें जस्ट प्लीज. Okay, ma'am.
Okay. Then CLO3, analyze continuous and discrete time signals. This CLOs is related to Fourier uh, analysis tools, which is in C transforms of these transform, right? Series, Fourier transform, Z transform, and inverse of these transforms and properties of these. So most of the मैम contents आपकी are based डिस्टॉर्टेड on वॉइस आ CL4. रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Okay. But CLO4 is more. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। यस मैम, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मैम फिर मीटिंग से निकल गई हैं शायद। आप लोग इंजीनियर बन जाओगे ऐसे बैठे बैठे पे। यार कसम से ऑनलाइन ये स्टडीज तो नहीं होती पहले है। लेक्चर में 70 वो कितनी है वो स्लाइड्स 75 कमरान हाँ खुदा ना। का यार। ये सारी तो नहीं पढ़ाएंगे ना, यार जस्ट मैम ने उन्होंने सारी नहीं पढ़ानी, मैम ने सिर्फ कहा था आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगी कोर्स का, पढ़ाना मैम ने ज्यादा नहीं है। इंट्रो तो ऑलमोस्ट हो गया यार। ये भी हो हाँ तो सकता है मैम कोई तो चली गई है ना बस। तो फिर आज यार क्या है? इंटरनेट इशू है। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? यस मैम। हम बार बार आपकी आवाज चली जाती है।
इंटरनेट का इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया, हो रहा है पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, why study signals and systems? Engineers build systems that process or manipulate signals, right? ऐसे systems जो कि signals को manipulate करते हैं या process करते हैं, तो ऐसे systems को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें signals and system का knowledge हो. We need a formal mathematical framework for the study of such systems. If you want to any type of system, then we must know about its mathematical framework, right? Suppose जैसे आप DLD पढ़ेंगे, तो if you want to design a 2-bit adder, right? तो 2-bit adder को डिजाइन करने के लिए पहले उसका सारा मैथमेटिकल 2 बिट्स ऐड कैसे होती हैं वो सारी मैथमेटिक्स आपको पता हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैथमेटिक्स यू विल डिजाइन 2-bit एडर। तो इसी तरह कोई भी सिस्टम आपने डिजाइन करना है, तो जब तक उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको नहीं पता, तो ना तो आप उसका हार्डवेयर बना सकते हैं और ना उसका सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे सिस्टम्स का। Such a framework is necessary in order to ensure that a system will meet the required specifications. इससे क्या होगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप इंश्योर कर सकते हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से, कि वो सारी जो मेरी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मीट कर रहा होगा ये सिस्टम, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. If a system fails to meet the required specifications, तो then तब भी आपको पता होगा कि क्या उसका ड्रॉबैक था या क्या चीज़ ऐसी रह गई थी उसके अंदर जिसकी वजह से इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए, ठीक है? ये उसने ब्रिज की एग्जांपल दी हुई है, आपकी बुक में है। साइमन हैगन का फर्स्ट चैप्टर देखिएगा, उसमें ये ब्रिज की उसने एग्जांपल दी हुई है कि ये ब्रिज जो था वो कुछ टाइम के बाद टूट गया था। उसकी क्या रीजन थी? उसके एनालिसिस जो थे वो सही नहीं किए गए थे, मटेरियल सही नहीं था, या स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो था एनालिसिस वो सही नहीं किया, ठीक है? तो इस तरह से आप बाद में भी देख सकते हैं कि नेगेटिव जो इसके इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से, किस वजह से आए, क्या चीज़ जो थी वो हमने इंक्लूड नहीं की या उस पर हमने फोकस नहीं किया। When a system fails to operate as expected, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह काम नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली नेगेटिव उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके सामने आएंगे, और वो जो है वो बहुत क्रिटिकल भी हो सकते हैं, जिस तरह के ये ऊपर ब्रिज की एग्जांपल दी हुई है। तो बहरहाल इन सारी फैक्ट्स को देखने के लिए हम it is important to study signals and systems. Signals and systems is all about mathematical calculations that describe and analyze the system which process signals, right? It's all related to mathematical calculations, or those mathematical calculation describes and analyze the system which process signal. वो system analysis और डिस्क्रिप्शन में दे रहा होता है, ठीक है? फ्रेमवर्क. So we will see what are signals, and then we will see what are systems, and then we will see their interaction with each other. What are signals? What is a signal? A description of how one parameter is related to another parameter. It is a simple definition. The voltage varies with time, ठीक है? वोल्टेज जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन ऑफ, आप ऊपर डेफिनेशन पे देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन पैरामीटर इज वोल्टेज इज रिलेटेड टू अनदर पैरामीटर, द सेकंड पैरामीटर इज टाइम. सो हाउ वोल्टेज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो these variations are known as your signal. If there is variation in your information, then it will be called signal. If you have a constant information, it will be not included in any type of signals, ठीक है? Or it will not a signal.
here you can see its graphical form. Along y-axis you have voltage and along मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही है x-axis मैम you बहुत have कटती है a time. So very मैम बिल्कुल ही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही मैम मैम सिग्नल का मसला है, नहीं आ रही बिल्कुल भी आवाज। इंटरनेट का मसला है सिग्नल पढ़ रहे हैं और सिग्नल ही नहीं आ रहे जी में। पढ़ने में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। वही तो कह रहा हूँ। मैम को कहें टॉपिक चेंज करें फिर शायद आ जाए।
Okay, it is an example of signals. अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? Yes, ma'am. Other examples of signals are like speech signal और ECG सिग्नल. दोनों में आप देख रहे हैं कि वेरिएशंस हैं, ठीक है, दोनों में वेरिएशंस हैं. जब तक सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, बेसिकली ये आपकी ये इसके बिहाइंड डेटा है ना, और डेटा इज योर इंफॉर्मेशन. जब तक उस इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस नहीं है, वेरिएशंस नहीं है, तब तक वो आपके पास सिग्नल नहीं होगा. सपोज मैं आपको कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिग्नल है, तो ये सिग्नल नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है कोई, और इसको आप इंफॉर्मेशन भी नहीं कह सकते, ठीक है. सपोज मैं डेली आपके आती हूँ, क्लास लेती हूँ, और क्लास में हर दफ़ा मैं एक ही बात करती हूँ, व्हाट इज सिग्नल एंड सिस्टम्स. तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी ना, ठीक है, कोई यूजफुल चीज़ आपके लिए नहीं होगी जब तक कि इसके आगे में कोई और वेरिएशंस नहीं लाती, कोई एग्जांपल्स नहीं देती, या नेक्स्ट कोई इसकी क्लासिफिकेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस हम नहीं पढ़ते, ठीक है. तो एक कांस्टेंट इंफॉर्मेशन डेटा जो होगा दैट विल बी नॉट अ सिग्नल. देन ईसीजी देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देयर इज अ वेरिएशन, राइट. ये यहाँ देखें, ये आपके पास आ रहा है ग्राफ, देन ये चेंज हुआ, देन ये आपके पास, फिर ये एक स्पाइक आई, और फिर ये वेरिएशंस. तो ये डिफरेंट वेरिएशंस आप देख सकते हैं, दैट इज योर signal. Okay, image is also signal in terms of computer, ठीक है. कंप्यूटर में जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इन टर्म्स ऑफ, आप इसको इन टर्म्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉडी है. जी मैं क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी श्योर. मैम जैसे आपने अभी फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन जहाँ पे लिखी थी सिग्नल की, वहाँ पे आपने एक ग्राफ दिखाया था जिसके अंदर वेव आ रही थी, साइनोसॉइडल वेव थी वहाँ पे. तो मैम नेक्स्ट में आपने ये कहा है कि जब हमारे पास वेरिएशन आती है ग्राफ के अंदर तो वो, हाँ ये वाली, अब जब हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन आ रही है तो ये सिग्नल नहीं होगा ना फिर, क्योंकि इसके अंदर भी तो चेंज आ रही है. जब तक चेंज नहीं आएगा तब तक आपके पास सिग्नल नहीं होगा, ठीक है. ये चेंज आ रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्नल. If you have a constant line, right? If you have a constant data, it will not a signal, right? जब आपके पास उसके अंदर वेरिएशन है, चेंजेस हैं, तो देन इट विल बी अ सिग्नल, ठीक है. तो यहाँ पे वेरिएशंस है ना, देखें यहाँ पे डिफरेंट डेटा है. मैथ्स में आपने ग्राफ्स बनाए होंगे ना, और आपने एक्स वाई डेटा लिया होगा, तो यहाँ पे देखें वाई की डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है. तो जो आपने एक सेट ऑफ डेटा कलेक्ट किया था उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज अ सिग्नल. ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वन डोमेन 1D सिग्नल है, राइट. आपके पास 2D सिग्नल्स भी होते हैं, जैसे आपके पास ये इमेज है, तो इमेज भी देखें, इसके अंदर वेरिएशंस हैं. इफ इवन हम इसका कलर भी देखें तो यहाँ पे देखें ये ब्लैक है, यहाँ पे ग्रे है, ये वाइट है, तो ये वेरिएशंस हैं. तो इसको हम इनकोड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्नल, लेकिन यहाँ पे हमें इसको 2D में देखना होगा, ठीक है. इसको हमें 2D में देखना होगा. देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, और यहाँ पे क्या है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है. v जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है. टाइम v के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रहा है. सो v इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. नाउ वी हैव इन टर्म्स ऑफ इमेज वी हैव 2 dependent variables. One is x and another one is y, ठीक है. Here you can see we can decode it these colors in this form, ठीक है, 2D form. ये डिफरेंट उसका बता रहा है. It is the variation pattern that conveys the information. वो कह रहे हैं कि इसके पैटर्न के अंदर वेरिएशन है, that conveys information, that's why it is a signal, ठीक है.
यहाँ पे देखें different pattern है. Here is another pattern where you can see there is a different pattern as compared to this one, or there is another pattern which is totally different than that of these patterns. So it conveys some information, that's why it is a signal. But here it is a 2D signal. Okay? Signal may exist in many forms like acoustic, right? Image, video. Video is also a signal, electrical signal, heat and light signal. Signals are function. अब ये इसकी proper definition है, ठीक है? पहले इसको simple terms में हमने देखा. Signals are functions of one or more independent variables. जैसे मैं आपको ऊपर बता रही थी, that carry information, right? Signals are functions of one or more independent variables that carry informations. Electrical signals, voltages and currents in a circuit. These are type of signals. Acoustic signals like audio or speech signals, or which can be a analog signal or digital signal. Okay? Analog signal or digital signal. We will see what are analog signals and what are digital signals. Then video signals, intensity variations in an image. ठीक है? Image के अंदर जैसे ऊपर हमने car की example देखी है. Mathematical representation of a signal. ठीक है? Here it is a graphical representation of a signal, and if you want to represent it in a mathematical form, so we can represent it Vt equal to sine of t. ठीक है? Voltage changes like a sine wave. ठीक? So that's why we can say Vt is equal to sine of t, or where t is from 0 to 2 pi. और ये आपके पास एस टी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई भी ऑडियो की एग्जांपल है, सेकेंड वन इज. ठीक है? तो एक आपने मैथमेटिकल फॉर्म देखी, एक आपने यहाँ पे इसकी ग्राफिकल फॉर्म देखी. यहाँ पे आप देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज टी. सो दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज this representation of signal is time domain representation, right? Or if you have a f or w here omega here, then it will be a type of or representation of signal in frequency domain. So next is mathematical representation of 2D signal. Here you can say s is a function or x comma y. S how your signal changes. ठीक है? तो x as x comma y. X and y are independent variables and s are dependent variable. यहाँ पे definition भी देख सकते हैं. Signals are functions of one or more independent variables that carry information, right? Now, what are systems? An entity that responds to a signal. ठीक है? An entity that responds to a signals. Like, suppose you have a system and you have an input signal. It will process your signal, then you will see an output signal. जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का एंटीना जो है वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से सिग्नल कैप्चर करता है, उसको प्रोसेस करता है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको उसका रिस्पॉन्स दे देता है. ठीक है? तो मोबाइल इज योर सिस्टम, but it's a complex system. It includes many subsystems, right? फिर subsystem क्या है वो हम आगे देखेंगे. तो here you can see an example from circuits. तो this is your input, और इनपुट क्या है, कोई भी करंट या वोल्टेज आप दे रहे हैं. ये सोर्स जो है ये आपकी इनपुट है, और ये सोर्स क्या कर रही है, इस सिस्टम को सिग्नल दे रही है. ठीक है? और दिस इज योर सिस्टम. इट विल गेट सिग्नल्स फ्रॉम सोर्स, एंड आपको पता है कि जो रेजिस्टर है उसका डिफरेंट बिहेवियर है, कैपेसिटर का डिफरेंट बिहेवियर है. तो ये सिग्नल को उस फॉर्म में प्रोसेस करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू सी आउटपुट वोल्टेज हियर. So that will be your output signal. ठीक है? This is your input signal. This is your, here you can see output signal. Output signal will be different from input signal because of system.
ठीक है. System will process this input signal and generate a output signal. System process input signals to produce output signals, right? जैसे कि हमने ऊपर देखा था, आपने देखा होगा कैपेसिटर का बिहेवियर कि किस तरह वोल्टेज आप दे रहे होते हैं और उसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो अगर आप देखें तो एक डिकेइंग फॉर्म है. दैट इज टोटली ऑपोजिट और डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, राइट? उसने अपने वे में उसको प्रोसेस किया है. तो सिस्टम किसी तरह भी आप डिजाइन कर सकते हैं जिस तरह की आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है, राइट? सपोज आपने एक एनालॉग डेटा लेना है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू नीड एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. तो एडीसी इज योर सिस्टम. You will provide an input signal that will be analog, and ADC is your system that will process your input signal and produce an output signal which will be a which will be in a digital form, right? So system process input signals to produce output signal. Second one, a system is combination of elements that manipulates one or more signals to accomplish a function and produce some output, right? जैसे आप मोबाइल का देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और एक इनपुट जो है वो दूसरे की एक की आउटपुट जो है वो दूसरे की इनपुट बन रही होती है और दूसरे की आउटपुट जो है वो थर्ड वन की बन रही होती है, और इस तरह कलेक्टिवली वो एक डिजायर्ड या रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो जनरेट करते हैं, ठीक है? इट इज अ मीनिंगफुल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस एंड फिजिकल कंपोनेंट्स. जिस तरह की आपको आउटपुट चाहिए, जो सिग्नल या जो फॉर्म आपको जिस स्टेप पे चाहिए, उस तरह का एक मीनिंगफुल कनेक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट्स. If a system is broken up into various parts, each part is called a subsystem. ठीक है? जैसे आप मोबाइल को खोल के देखते हैं तो बैटरी इज अ सबसिस्टम, एंटेना इज अ सबसिस्टम, ठीक है? योर सिम इज अ सबसिस्टम, और oscillators or capacitors or resistors or inductors or your subsystem or different elements. So we can say a system is interconnection of subsystems, right? We can say a system is a interconnection of subsystem. A subsystem must be, जैसे कि हमने ऊपर एक सिंपल एग्जांपल देखी थी सिस्टम की, जहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन जो था वो एक सिस्टम था, ठीक है? So whole system includes different subsystems or different elements or different devices. A system by itself cannot achieve anything. It must be closely interlinked to signals. ठीक है? Suppose आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है और इसको कहीं से सिग्नल्स नहीं मिल रहे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? या वो आउटपुट कोई जनरेट नहीं कर पा रहा, उसका कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, इंटर लिंक्ड नहीं है विद सिग्नल्स, तो उस डिवाइस का आपके पास होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो here you can see system is a black box which takes input signals or process those signals and produce output signal, right? So here is example. The job of the system is often to extract data को extract करो, modify, उसको मॉडिफाई करें, ट्रांसफॉर्म करें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे मैंने आपको कहा था लाइक एनालॉग टू डिजिटल, और मैनिपुलेट या उस पर कोई प्रोसेस और perform करें that carried information, right? So big part of signals and system is using math models to see what a system does to a signal, ठीक है? The most important thing behind the signals and system is math model, right? So how system will interact to those signals. So here you have audio amplifier, ठीक है? और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ माइक से, तो यहाँ पे अंदर एक एम्पलीफायर है जो इस सिग्नल को ले रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है. तो here first here will be a voice will be taken a transducer. उसको हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, और वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी. देन यू हैव ऑडियो एम्पलीफायर, amplifier, you know, it will boost your signal, then you will be able to see or to listen your output voltage
V out, that is physical signal. So जो वॉइस सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है डेफिनेटली उसका एक मैथमेटिकल इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म होगी और एक इसकी ग्राफिकल फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो xt क्या है, मैथ फंक्शन, कोई भी लाइक साइन वेव दे रहे हैं, कुछ साइन वेव दे रहे हैं या कोई भी वेव, that wave can be represented in terms of a math function or that wave can be generated based on that mathematical formulas, right? Then you have a system कोई भी है उसके बिहाइंड भी आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता हो, जैसे आप रेजिस्टर और वो कैपेसिटर था ऊपर, तो इसका रिलेशनशिप आपको पता है, इसकी इक्वेशन कैसे डिवेलप होती है, आपके पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टर्स हैं, उनकी इक्वेशन कैसे डिवेलप होती है, तो वो क्या है, दैट इज मैथ मॉडल ऑफ योर सिस्टम। और वो मैथमेटिकली उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देन उसका ग्राफिकली क्या आपके पास आउटपुट होगा। Examples of systems, the circuit involving a capacitor can be viewed as a system that transforms the source voltage, that was your input signal, to voltage across the capacitor, ठीक है। और मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये सारा आपस में रिलेटेड है। कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम आप देख रहे होंगे और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो उसका आउटपुट वोल्टेज कैसी है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में अच्छी तरह पढ़ा होगा। Another example of signals and systems is communication system, which is related to your degree and your course, is generally composed of 3 subsystems: the transmitter, any type of communication system, any mobile है आपका कंप्यूटर है या और कोई डिवाइस है, any type of communication has 3 subsystems, ठीक है। और वो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंटरनल जो उसका सब सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप कौन सा सिस्टम यूज करें, टेलीविजन है, रेडियो है, ये आपके क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और हर एक का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। लेकिन अगर टॉप से देखें किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को, so that communication system composed of 3 subsystems. One is transmitter, channel and receiver. The channel typically attenuates and add noise to the transmitter signal, transmitted signal which must be processed by the receiver, right? आप जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हम इवन एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो मैं अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपकी जो उस टीचर की जो वॉइस आ रही है आप तक, वो किसके थ्रू आ रही है, थ्रू एयर आ रही है, और वो अटेनुएट होती है, कैसे अटेनुएट होती है, जैसे वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है आपके तक, ठीक है। जो डायरेक्ट आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन वॉल से रिफ्लेक्ट हो रही है या किसी विंडो से रिफ्लेक्ट हो रही है या डोर से रिफ्लेक्ट हो रही है, और इसी तरह अगर कोई और नॉइज है तो वो उसके अंदर ऐड हो रही है। तो चैनल से बेसिकली क्या होता है, सिग्नल अटेनुएट होता है और वो, उसके अंदर नॉइज जो है वो ऐड होती है। तो रिसीवर का क्या काम होता है, एक रिसीवर की जो जॉब है वो ये भी है कि उस सिग्नल को, जो नॉइज है, ये जो अटेनुएशन है, उसको ओवरकम करे, उसको एलिमिनेट करे। देन यू हैव अ बायोमेडिकल सिस्टम, ठीक है। बायोमेडिकल सिस्टम जैसे आपने देखा होगा ग्लूकोमीटर है या बीपी ऑपरेटर्स है, और कंट्रोल सिस्टम्स जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो तब आप देख सकते हैं कि क्लच और रेस, अगर आप देखें जो लोग कार ड्राइव करते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है और जो कार का आपके पास रिस्पॉन्स है, तो ये सारा आपके पास कंट्रोल सिस्टम में आएगा। और भी डिफरेंट आप देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम, एग्जांपल नीचे देखेंगे और हैं कंट्रोल सिस्टम्स के। ओके, ये सिंपल वो दिखा रहा है कि जैसे इमेज है आपके पास, और इमेज जैसे आपके पास कैमरा है, कैमरा आपने पिक्चर ली और फिर आउटपुट जो है वो इमेज की फॉर्म में, अपने इनपुट भी एक सिग्नल की फॉर्म में और आउटपुट भी आपको सिग्नल की फॉर्म में, लेकिन उस सिग्नल को फिर हम इमेज की फॉर्म में कैमरा ही कन्वर्ट कर
कर देगा। फिर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, आप कुछ भी बोल रहे हैं तो आपका कंप्यूटर जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर, वो उसको अंडरस्टैंड करके रिप्रोड्यूस कर रहा है, राइट, या उसके अकॉर्डिंग कोई आपको आउटपुट दे रहा है। जैसे आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी, तो वॉइस सिग्नल को भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी सर्च आपको करके दे सकता है। सो यहाँ हम कम्युनिकेशन सिस्टम की एग्जांपल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। A communication system is composed of the following. One is input transducer, another one is transmitter, then channel. Channel can be wired and can be wireless. Wired में क्या होगा, like coax cables, और कौन सी केबल्स हो सकती हैं, ट्विस्टेड पेयर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। और ये आपके पास वाइड मीडियम है कि एक ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डेटा ले जाने के लिए जो पाथ है, दैट इज योर चैनल, राइट। और चैनल से हमने देखा था कि एटेन्यूएशन, नॉइज वगैरह ऐड होती है, डिस्टॉर्शन, नॉइज, डिस्पर्शन, ये टर्म्स क्या है हम वन बाय वन देखेंगे। देन यू हैव अ रिसीवर, रिसीवर विल कैप्चर योर सिग्नल्स, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ठीक है। और देन इट विल प्रोसेस दैट सिग्नल and reproduce into human understandable form. Then you have output transducer and output message. So detail में हम one by one देखते हैं. First one is input transducer. Input transducer take a signal in the form of analog or digital, ठीक है, और that signal can be a speech, music, written text or pictures. Any type of data can be taken by a input transducer. Input transducer, right? जैसे microphone, microphone is a input transducer that takes speech waves and convert those waves into voltage form, right? Input transducer converts the message produced by a source to form a suitable for the communication system, right? Input वो ले रहा है सोर्स से, सोर्स कैन बी ह्यूमन, ह्यूमन ही मोस्टली होगा, जैसे वॉइस है, ऑडियो है, डेटा है, कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर वो फॉर्म लेगा और उसको वोल्टेज, करंट या लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इट डिपेंड्स कि रेस्ट ऑफ द सर्किट किस पे ऑपरेट हो रहा है, राइट। So that is example of your input transducer. Transmitter. What is job of transmitter? Prepare the input signal for actual transmission over the communication channel. For example, modulation. What is modulation? ये हम next देखेंगे, ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। So जैसे prepare the input signal for actual transmission over the communication channel. जैसे आपके पास कोई सिग्नल है और आपने उसको करना है, एक हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसलेट करना है, लेकिन सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे है, तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर लो फ्रीक्वेंसी से सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देगा, सो दैट कि उस चैनल से वो पास हो सके, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एट हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। और ये ट्रांसमीटर की जॉब है कि किसी भी सिग्नल को प्रिपेयर करे सो दैट वो सिग्नल उस मीडियम से पास हो सके। और मीडियम कैन बी अ वायरलेस एंड वायर्ड, कौन कौन सी है वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑल्सो जैसे 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 हम ये भी देख सकते हैं कि किसी सिग्नल को हमने सिक्योर बनाना है, तो उस पर कोई मैथमेटिकली एल्गोस कोई एल्गोस उस पर हम लगाएं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे CRC कोड और इस तरह की चीज़ें, ये सारा कहाँ पे हो रहा होता है, ट्रांसमीटर साइड पे होता है, ठीक है। और जैसे अभी आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप पढ़ रहे होंगे मॉन्चेस्टर इनकोडिंग और ये वो इस तरह की फॉर्म्स डिफरेंट, और फिर आगे सिक्योरिटी कीज पढ़ेंगे और सिक्योरिटी एल्गोस पढ़ेंगे, जैसे CRC है, फिर आगे कहीं डिजिटल कम्युनिकेशन या एडवांस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ रहे होंगे विटरबी डिकोडर एंड सो ऑन, ठीक है। और डिजिटल इनकोडिंग, अगर आपका सिस्टम जो है वो जो मीडियम है वो डिजिटल डाटा को सपोर्ट करता है, तो उसको डिजिटल डाटा में फॉर्म करने के लिए डिजिटल डिकोडर,
ठीक है। ये सारा काम जो है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमीटर के अंदर एम्पलीफायर भी हो सकते हैं, फिल्टर्स भी हो सकते हैं, होते हैं मॉड्यूलेटर्स, इनकोडर्स और एंड सो मेनी सपोर्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। Examples of transmitter are TV stations, radio stations, and web server, right? These are all your transmitter channel, physical medium that does the transmission, okay, जिससे डाटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है, that is known as your channel. Examples: air, wires, coaxial cable, radio waves, laser beams, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है। अगर आप देखें इसका स्पेक्ट्रम देखें तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हैं उसकी सिग्नल्स की या स्पेक्ट्रम की। तो उनमें से है एक है रेडियो वेव्स, ठीक है। और रेडियो वेव्स यूज होती हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, जैसे मोबाइल यूज करते हैं, ठीक होगा। एवरी चैनल इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन, नॉइज एंड इंटरफेरेंस। कोई भी चैनल जो होगा वो वहां से आपके पास सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन आएगी, नॉइज आएगी एंड इंटरफेरेंस होगी। Then receiver. Job of receiver also includes to undo all harmful degradation introduced by the channel. Channel से क्या additions होंगी? One, it can be distortion, it can be interference, similar frequency पे कोई और signal जो है वो transmit हो रहा हो, और it can be a noise. Noise क्या है? मैनमेड नॉइज भी हो सकती है, जैसे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई मोटर है उसकी वजह से आवाज आ रही है, या कोई गाड़ी गुजर रही है उसकी वजह से आवाज आ रही है। और इंटरनल और थंडरिंग वगैरह की वजह से अगर कोई नॉइज ऐड हो रही है। और जो इंटरनल जो है वो मोस्टली जैसे वायर का अपना बिहेवियर, रेजिस्टेंस उसकी, और थर्मल हीट जो है ट्रांसमीटर साइड पे, वहां से भी नॉइज ऐड हो सकती है, ठीक है। जॉब ऑफ ओके, तो ये जो एडिशंस थी उनको अनडू करना, ठीक है, उनको अनडू करना ये रिसीवर की जॉब है। और जो डेटा था ट्रांसमीटर ने की साइड पे जो डेटा चेंज हुआ था, मॉडिफाई किया था, उसको अप्रोप्रिएट बना के चैनल पे ट्रांसमिट किया था, तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन है उसको अंडरस्टैंड कर सके। डीमॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर और रिसीवर की ऑपोजिट जॉब होती है। जो ट्रांसमीटर ने किया, रिसीवर ने उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट मैसेज फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल, ऑपरेशंस लाइक एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि जब आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो इट विल attenuate by many resistance encountered in channel. So receiver must amplify the signal, demodulate, which is opposite to modulation, ठीक है। तो what was modulation? Translation of lower frequency component at higher component, ठीक है। तो वापस हायर कंपोनेंट पे, हायर फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल ट्रांसलेट किया था उसको लोअर पे लेके जाएंगे, दैट इज डिमॉड्यूलेशन। और इट इज फंक्शन ऑफ रिसीवर फिल्टरिंग, अगर कोई नॉइज वगैरह ऐड हुई तो उसको फिल्टर करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ रिसीवर्स आर टीवी सेट, रेडियो एंड वेब क्लाइंट, राइट। देन output transducer. Output transducer converts electrical signal into form desired by the system, ठीक है। जो हमें आउटपुट चाहिए जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में, जैसे हमें मैं अगर आप सुन रहे हैं तो आपको कोई वोल्टेज या करंट तो नहीं चाहिए ना, आप तो वॉइस चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास जो भी सिग्नल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट, वोल्टेज और लाइट, उसको वो वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। एग्जांपल्स लाउड स्पीकर एंड पीसी। काफी आज? यस मैम। इतने स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो आज के लिए इतना काफी, ठीक है। लेकिन क्लास को ये बता दीजिएगा कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू हैव एन असाइनमेंट, ठीक है।
वो असाइनमेंट आपने करनी है। और असाइनमेंट क्या है, ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है या सिस्टम्स हैं, तो इनमें से किसी भी एक सिस्टम को आपने उठाना है और उस पे आपने नोट लिखना है, ठीक है। कि इसके अंदर सिस्टम क्या है, सिस्टम में सब सिस्टम्स क्या हैं, और इसमें जो सिग्नल्स हैं वो किस फॉर्म में, ठीक है। इनपुट सिग्नल किस फॉर्म में, आउटपुट सिग्नल किस फॉर्म में, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स इन सिस्टम आप इनमें से किसी भी एक टाइप को, ये सारे इसमें से किसी भी एक सिस्टम को उठा के आपने उस पर नोट लिखना है, ठीक होगा। ओके मैम। चलें ठीक है। एनी क्वेश्चन? मैम आपकी स्लाइड अपलोड कर देंगे? यस इंशाल्लाह। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ ओके मिस। मैम, अल्लाह मिस अल्लाह हाफिज।